So hello students, আজি আমাৰ নতুন এটা আমি ম্যাথছৰ চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম, that is ratio and proportion, অনুপাত আৰু সমানুপাত। ঠিক আছে, ratio and proportion। Okay, first of all, ratio মানে কি? What does ratio mean? ratio কি meaning কি? অনুপাত মানে কি? অনুপাত মানে বেসিক্যালি কম্পেয়ার করা, কম্পারিজন, है ना। रेशियो माने कम्पेरिजन करा, कम्पेयर करा। এতিয়া কম্পেৰিজন কাৰ মাজত কম্পেৰিজন? সাপোজ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু কৰা হল যে 5 কেজি আটা আৰু 3টা ছাগলী, কোনো কম্পেৰিজনে নহয়, বিকজ দিস ইজ আ নাম্বার এন্ড দিস ইজ আ কেজি। সো কম্পেৰিজন কাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰা হ'ব, কাৰ মাজত তুলনা কৰা হ'ব? কম্পেৰিজন বিটুইন সিমিলার এন্টিটিজ, সিমিলার বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰা, সিমিলার বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰা, এটোৱে হল আপোনাৰ ৰেশিও, অনুপাত। এতিয়া সিমিলার কথাটো মানে আকৌ দিগদাৰ। সিমিলার মানে কি স্যার? মানে আটাৰ লগত আটা, পয়সাৰ লগত পয়সা, এনেকে নেকি? নহয়। সিমিলার মানে হল ইউনিট সেম। যদি ইউনিট যদি সেম হয়, যদি ইউনিট সেম হোৱা মানে সিমিলার বুলি ইয়াতে মিন কৰা হৈছে। যেনেকে আপোনাক কোৱা হল সাপোজ 5 কেজি আটা, 5 কেজি আটা, আৰু সাপোজ কোৱা হল 7 কেজি রাইস, চাউল 7 কেজি। ইয়াৰ মাজত ৰেশিও ওলোৱা যাব। দিস ইজ কল্ড ইজ টু ৰেশিও, এনেকে দেখাও হয়। ঠিক আছে, ইজ টু। সো যেহেতু কেজি কেজি আছে, তো অবভিয়াসলি আপুনি 5 কেজি আৰু 7 কেজি যদি ৰেশিও ওলাব যায়, এটো মানে হল বেসিক্যালি A is to B যদি করা হয়, A is to B মানে হল A by B, A is to B, এটো কয় is to, A is to B মানে A আৰু B ৰ মাজত অনুপাত, ৰেশিও। এটো আমি A by B বুলি লিখিব পাৰো। তো ইয়াতে 5 কেজি is to 7 কেজি মানে কি? 5 কেজি by 7 কেজি। সো ইয়াতে ইউনিট থাকার কোনো প্রশ্নই নাই, বিকজ কেজি কেজি ক্যান্সেল হয়ে গেল। 5 by 7, সো 5 is to 7। বেসিক্যালি ৰেশিও যেতিয়া আপুনি লিখিব, অনুপাত যেতিয়া লিখিব আপুনি, অনুপাতত কেতিয়াও ইউনিট নাহে, কেজি, রুপিস, ডলার, কোনো ইউনিট নাহে, জাস্ট ইটস আ নাম্বার, রেশিও। ক্লিয়ার? আৰু A is to B মানে A by B বুলি লিখা যায়। क्लियर है? सो रेशियो का मतलब इधर हम लोग का क्लियर हुआ। एक छोटा सा और बात कि अपना गम पाए যে যদি আপনার কোয়া হয় যে 5 by 7, 5 by 7, দিস ইজ আ ফ্র্যাকশন। এটা একটা ভগ্নাংশ হয়, ফ্র্যাকশন, দিস ইজ আ ফ্র্যাকশন। সেটা ভগ্নাংশ যদি আপনি লিখিব নহয়, এই উপৰৰ নম্বৰটো আপোনাক কোৱা হয় নিউমাৰেটৰ। দিস ইজ কল্ড নিউমাৰেটৰ, লব। আৰু তলৰ নম্বৰটো কি কোৱা হয়? ডিনোমিনেটৰ, হৰ। হয় না? লব আৰু হৰ। এতিয়া আপুনি যদি 5 is to 7 লিখে, 5 is to 7 মানেই তো 5 by 7। সো এটো হল নিউমারেটর, দিস ইজ ডিনোমিনেটর। বাট আপনি সেম ভগ্নাংশ যেতিয়া আপনি অনুপাতত লিখিব, A is to B ফর্মত লিখিব, এই আগত থাকা নম্বরটো আপোনাক কোৱা হ'ব এন্টিসিডেন্ট, এন্টিসিডেন্ট। আৰু এই পিছৰ নম্বৰটো কোৱা হ'ব আপোনাক কনসিকুয়েন্ট। ঠিক আছে, সেম বস্তু যদি আপনি ভগ্নাংশত লিখিব, নিউমারেটর, ডিনোমিনেটর। এই নাম জানাটো প্ৰয়োজন, বিকজ আপনি এনেকে, মই আপোনাক প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চন দেখাব পাৰিম বাৰু পিছত। তাতে আপুনি চাব যে এন্টিসিডেন্ট কনসিকুয়েন্ট বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। তো আপোনাক কোৱা হল এটা অনুপাত, যে অনুপাতত এন্টিসিডেন্ট 5, কনসিকুয়েন্ট 7 মানে হল আপোনাক 5 is to 7 এর কথাই কোৱা হৈছে। তো নাম याद रखना थोड़ा जरूरी है। क्लियर है? ओके। सो रेशियो মানে কি, रेशियो কেনেকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, এটা আমার ক্লিয়ার হল। नेक्स्ट आइए proportion, रेशियो एंड proportion। तो proportion মানে বেসিক্যালি সমানুপাত। তো নামৰ যদি আমি সন্ধি বিচ্ছেদ যদি কৰা হয়, যদি সমান অনুপাত, দুটা ৰেশিও যদি আপুনি সমান কৰি দিয়ে, যে সাপোজ A is to B এটা ৰেশিও আৰু C is to D এটা ৰেশিও, দুটা বেলেগ বেলেগ ৰেশিও, দুটা বেলেগ বেলেগ অনুপাত। এটা এই দুটা অনুপাত যদি আপনি সমান কৰি দিয়ে, ইকুয়াল যদি কৰি দিয়ে, দিস ইজ আ proportion। ক্লিয়ার? সো A
বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি এনেকে লিখা যায়। ক্লিয়ার? তো প্রপোর্শন মানে দুটা অনুপাত যদি আপনি সমান কৰি দিয়ে, ইকুৱেল যদি কৰি দিয়ে, এটো আপোনাক কোৱা হ'ব প্ৰপোৰ্শন। এতিয়া প্ৰপোৰ্শন লৈ আৰু বহুত কিবা কিবি ডিসকাশন কৰিব লগা আছে, বাট এতিয়া নকৰো বিকজ ৰেশিও ৰিলেটেড কোশ্চেনস আগতে আমি শেষ কৰিম, তাৰপিছত আমি আকৌ प्रपोर्शनत আহিম। ঠিক আছে, ইয়াতে আকৌ সেপারেট के हम डिस्कशन करें, बट अभी के लिए इतना सिर्फ जान के रखिए कि रेशियो, दो रेशियो को अगर आप इक्वल कर देते हैं उसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। इतना ही याद रखेंगे अभी के लिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए कुछ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो माने की है? डुप्लीकेट रेशियो माने की है? আপনাক একটা রেশিও দিয়া আছে a/b, আপনাক একটা রেশিও দিয়া আছে a/b। যদি আপনি এই যে a আছে a, এটু যদি আপনি বর্গ করে দিই, স্কয়ার যদি করে দিই a স্কয়ার, আর এই যে b আছে এই b যদি আপনি বর্গ যদি করে দিই b স্কয়ার, আর এর যদি আপনি আকৌ অনুপাত যদি উলাই দিয়ে, দিস ইজ কল্ড ডুপ্লিকেট রেশিও। মানে এই রেশিওর ডুপ্লিকেট রেশিও যদি আপনাকে উলাব দিয়ে, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, अपनी खाली दुटा नम्बरक खाली वर्ग करिब और अनुपात उलाबो, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं 3:4, 3:4 अपने डुप्लीकेट रेशियो उलाई दियो, सो अपनी 3 स्क्वायर करक, अपनी 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर মাজতে অনুপাত, 3 स्क्वायर माने 9, 4 स्क्वायर 16, दिस इज योर आंसर। सिंपल। 3:4 और डुप्लीकेट रेशियो की 9:16। क्लियर? এতিয়া सब डुप्लीकेट रेशियो माने কি জাস্ট উল্টা। আপনাক রেশিও দিয়া আছে a/b, আপনাক উলাব দিলে सब डुप्लीकेट रेशियो, উলাব দিলে सब डुप्लीकेट रेशियो। সো আপনি ইয়ার বর্গমূল করিব, স্কয়ার রুট, রুট ওভার a রুট ওভার b, এই যে রেশিও আপনি পাবো, দিস ইজ কল্ড सब डुप्लीकेट रेशियो। As for example, আপনাক দিয়া হইছে 81:121, আপনাক सब डुप्लीकेट रेशियो উলাব দিলে, মানে বেসিক্যালি 81 और আপনি যদি বর্গমূল লিখে রুট ওভার 81, 9 and 11, ইয়াতে রুট ওভার 121, সো রুট ওভার 81 মানে 9, রুট ওভার 121 মানে 11, রেশিও ইজ 9:11। क्लियर? डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ঠিক আছে? নেক্সট ইজ এটা কোশ্চেন, এক্সামত আহা কোশ্চেন এটো। হ্যাঁ, ফাইন্ড দ্য ডুপ্লিকেট রেশিও, এটো অসমীয়াত কোৱা হয় দ্বিগানু অনুপাত। সো ফাইন্ড দ্য ডুপ্লিকেট রেশিও 5:6, 5:6 এর আপনার ডুপ্লিকেট রেশিও উলাব দিছে। সো কি হবে? 5:6 ইয়ার আপনার উলাব দিছে ডুপ্লিকেট রেশিও, সো 5 স্কয়ার = 6 স্কয়ার, 5 স্কয়ার মানে 25, 6 স্কয়ার মানে 36, this is your answer, this is your answer, 25:36, simple। similarly আপনাক सब डुप्लीकेट रेशियो উলাব দিছে 121 169, 11 and 13, सब डुप्लीकेट रेशियो উলাব দিয়া মানে আপনি বেসিক্যালি বর্গমূল করিব, স্কয়ার রুট করিব, স্কয়ার রুট। तो रूट ओवर 121 is 11, रूट ओवर 169 is 13, आंसर is 11:13, 11:13 is your answer। ঠিক আছে, উপবর্গ অনুপাত বলি কোয়া হয়। नाउ कम्स ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। मैं ऑल स्पीड कर बाद में आप लोग पीडीएफ कर ले लीजिएगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सिंपल। যদি আপনার রেশিও দিয়া থাকে a/b, আপনার ট্রিপ্লিকেট রেশিও উলাব দিলে, হ্যাঁ কিউব, ট্রিপ্লিকেট রেশিও মানে a এর আপনি কিউব করক, b এর কিউব করে দিয়ক, a³ b³। जैसे कि আপনাক দিয়া হল সাপোজ 4:5, 4:5 और अपने ट्रिप्लिकेट रेशियो उलाई दियक, सो 4 और किউব = 5³, 4³ किमान 64:125, दिस इज योर आंसर। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो माने स्क्वायर करा,
ট্রিপ্লিকেট রেশিও মানে কিউব করা। সিমিলারলি সাব ট্রিপ্লিকেট রেশিও মানে কিউব রুট a is to b দিয়া আছে, ইয়ার সাব ট্রিপ্লিকেট রেশিও আপনাক ওলাব দিলে, সাব ট্রিপ্লিকেট রেশিও। সো আপনি কি কৰিব, কিউব রুট অফ a is to কিউব রুট অফ b। as for example আপোনাক দিয়া হল 343 is to 729, find the sub triplicate ratio। 343 আৰু 749 or sub triplicate ratio। so 343 cube root 343 हाँ a cube root of 729, तो cube root of 343 729 9, answer will be 7:9। हाँ 5 into 5 into 5 125, 5 cube माने 5 cube माने कि 5 into 5 into 5, 5 5 25 25 5 125, हाँ ना 5 into 3 आपका 5 into 5 into 5 ना, तो 5 5 जा 25 25 into 5 125, याते 3 था के लिए अपना 75 होगा, है ना? क्लियर? Moving to the next question, easy question already करा हो लेते बरो। 4:5 और triplicate ratio, 4:5 और अपना triplicate ratio उलाबो दिसे। So basically 4 cube is to 5 cube, 4 cube माने 64, 5 cube माने 125, answer is 64 is to 125। clear? Sub triplicate ratio 64 343, sub triplicate ratio 64 343, cube root of 64 cube root of 343, तो cube root of 64 4, cube root of 343 7। okay, so next triplicate ratio हो गल, sub triplicate हो गल, duplicate हो गल, sub duplicate हो गल ना। next concept is compound ratio, next concept is compound ratio। compound ratio মানে কি হয়, suppose আপনার কেটামান রেশিও দিয়া আছে, অনুপাত দিয়া আছে, a is to b, c is to d, e is to f, suppose g is to h, কেটামান অনুপাত আপনাক দিয়া আছে और আপনার কম্পাউন্ড রেশিও ওলাব দিলে। কম্পাউন্ড রেশিও বেসিক্যালি মানে হল যে আপনি রেশিও কেটা আগতে না আপনি ভগ্নাংশত কনভার্ট কৰি দিয়ক। a is to b মানে a by b, c is to d মানে c by d, e is to f মানে e by f, g is to h মানে g by h, হল না? এতে আপনি রেশিও কেটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক, যেটা আপনি आंसर পাবো লাস্ট লৈকে, এই आंसर আপনি যদি রেশিওত লিখে দিয়ে আপনি কম্পাউন্ড রেশিও পাবো। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसको फ्रैक्शन में लेना है, काटाकाटी करना है, जो जो जा रहा है काटिए, लास्ट में जो आपका आंसर मिलेगा फ्रैक्शन में मिलेगा, उसको फिर से रेशियो में लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक, यानी कि फाइंड द कम्पाउंड रेशियो ऑफ दिस, केटामान अपना एटु मिश्र अनुपात বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, কম্পাউন্ড রেশিও মানে মিশ্র অনুপাত, আপনার কেটামান রেশিও দিয়া আছে আর কম্পাউন্ড রেশিও ওলাব দিলে। সো আপনি কি দিয়া আছে 2:3, আপনি লিখি দিয়ক 2/3, দিয়া আছে 4:5, আপনি লিখক 4/5, 6:11 6/11, 12:77 12/77 ইনটু ইনটু ইনটু। ক্লিয়ার? এতিয়া এতিয়া আপনি যদি সাপোজ আপনি 3 1 is 3, 3 2 जा 6, है ना? और कुछ काटेगा क्या? और तो है नहीं कुछ काटने के लिए, नहीं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 4 into 2 into 12 divided by 5 into 11 into 77, कैलकुलेशन কৰি চাবচোন কিমান আহি আছে এটো। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 into 12, 16 into 12 160, 160 32, 192 192, और ইয়াতে 121 121 5 605 605 into 7
605 इंटू 7 35 7 6 42 4235 ठीक है। सो आंसर विल बी 1924235 এবার ক্যালকুলেশন চাই লব হ্যাঁ এবার ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটর মাই চাই লব ঠিক আছে 192:4235 ठीक है हो गया। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। हाँ शायद इसमें ज्यादा बेहतर होता যদি আপনার এই রেশিওটা যদি উল্টাকে দেয়া থাকিলে 77/12 तो 77 और 11 কটাকটি করলে বস্তুটা অলপ ইজি হলো ঠিক আছে जो है ये आपका आंसर है। सो बेसिकली कम्पाउंड रेशियो মানে গোটেইকেইটা রেশিও আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰিব পূৰণ কৰাৰ পিছত যেটো আপোনাৰ ভগ্নাংশ ওলাব কনভার্টেড ইনটু রেশিও হেক ক্লিয়ার ওকে হৈ গল আপোনাৰ এটা টাইপ অফ কোশ্চেন আমি হেক কৰিলো। নেক্সট টাইপ অফ কোশ্চেন ইয়াতে আপোনাৰ দুটা অনুপাত দিয়া থাকিব আৰু আপোনাক ওলাব দিছে A:B:C ওকে এবাৰ আগতে লিখি লওক বস্তুখিনি B:C আপোনাক দিয়া আছে 2:3 আৰু A:C দিয়া আছে 5:8 আপোনাক A:B:C ওলাব দিছে A:B:C ওলাব দিছে ओके सब एक बेसिक चीज पहले समझ लेंगे। हाँ एक बेसिक चीज पहले समझ लीजिए যেতিয়া আপোনাক এনেকে দুটা রেশিও দিয়া থাকিব আৰু এটা রেশিও ওলাব দিয়ে শর্টকাট আমি নিশ্চয়কৈ শিকিম এটো বেলেগ বেলেগ শর্টকাট আছে এটো বাট ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট বহুত বেसिक কথা হল আপনার এই দুটা রেশিওর মাজত कॉमन कौन माने वो इधर भी है कॉमन कौन है इधर सी आपको हमेशा वो कॉमन नंबर को सेम करना पड़ेगा। कॉमन नंबर যদি সেম করা যায় आंसर এনে ওলাই যাব আৰু ঠিক আছে जैसे कि আপনি ইয়াতে গম পাইছে যে ইয়াতে B:C A:C C কমন আছে বাট C তো নম্বৰ কেটা বেলেগ বেলেগ ইয়াতে C ৰ ভ্যালু কি 3 C ৰ ভ্যালু কি 8 বেলেগ বেলেগ আছে তো 3 আৰু 8 আপোনাক সমান কৰিব লাগিব সেম কৰা মানে লসাগু লোৱা ম্যাথছত যেতিয়া কোৱা হ'ব সেম কৰি দিয়ক সেম কৰা মানে লসাগু লৈ লওক। সো 3 আৰু 8 ৰ লসাগু কিমান হ'ব 24 कोई कॉमन नहीं मैं 3 × 8 24 सो आपको इसको भी 24 करना है इसको भी 24 करना है। अभी 3 को 24 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे भी देख सकते हैं अपने तो B:C इसको लिखिए B/C 2/3 A:C माने A/C इक्वल टू 5/8 अपना C सेम C আছে বাট ইয়াতে C3 ইয়াতে 3 8 সো আপনি 3 আর 8 এর আপনি লসাগু লব 3 আর 8 এর লসাগু কিমান হবে আপনার 24 সো ইয়াতে 3 আর 8 এর লসাগু 24 মানে ফাইনালি আমি C আমি 24 এ বনাম আমি সো 24 বনোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মই 24 লিখিলো আৰু ইয়াতে C ঠাইত মই 24 লিখিলো। এতিয়া 8 আছে 8 24 কৰাৰ বাবে কি পূৰণ দিম 3 सो अगर इधर 3 मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा 5 3 जा 15 3 আছে 24 বনাব লাগে কি পূৰণ দিম 8 সো ইয়াতে আমি 8 পূৰণ দিম 8 2 जा 16 সো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আপোনাক ওলাব লাগে কি A:B:C A:B:C C মানে কিমান C মানে 24 এই যে C মানে 24 B মানে 16 A মানে This is your answer. This is your answer. Clear? ठीक है तो जो कॉमन है उसको सेम बना दीजिए। सेम बनाना मतलब एलसीएम लेना। अभी इधर 3 और 8 है 3 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं सिवाय 1 के 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर जिसका दो नंबर का कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ 1 है एलसीएम कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है 8 और 9 का एलसीएम 72 6 और 7 का एलसीएम 42 बिकॉज कोई कॉमन नहीं है 1 छोड़ के। लेकिन मैं अब ऐसा मत कीजिएगा कि 6 और 12 लॉसगो की मान 6 और 7 ना इसमें कॉमन है 6 तो आपको 6 लीजिए 1 कीजिए 2 कीजिए 6 2 12 आपका एलसीएम बेसिक आ रही वस्तु के क्लियर। ये जो मैं प्रोसेस आपको सिखाया हूं दिस अ वेरी माने बेसिक प्रोसेस ठीक है। मैं इसका और भी कुछ इसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे चल के कवर कीजिए ठीक है। नेक्स्ट A:B B:C A:B:C उलाबो दिले ओके एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को 2:3 4:1 ना एक काम करते हैं मैं इसको ऐसे व्हाइट पेज में करता हूं इसको A:B दिया আছে কিমান 2:3 আৰু B:C আপোনাক দিয়া আছে 4:1
ठीक है, मुझे निकालना है মোক ওলাব দিলে A:B:C, दिस इज द क्वेश्चन। मैं আপোনাক এইটো তিনিটা মেথডত শিকাম, 3 मेथड्स, ठीक है, और हर एक मेथड याद रखेंगे बिकॉज यहाँ पे नहीं तो दूसरा कहीं पे आपको हर एक मेथड ही यूज करना पड़ेगा कम ज्यादा करके, ठीक है, तो आपको एक एक मेथड याद रखेंगे। फर्स्ट मेथड, मेथड 1 इज जो আমাক स्कूलत শিকোৱা হয়, ये क्लास 7 का आपका क्वेश्चन है, क्लास 7 में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो स्कूलत जेनेके শিকোৱা সেইটো আগত মই শিকিম আৰু কেনেকে A:B মানে A/B 2/3, B:C মানে B/C 4:1, क्लियर। सपोज क्वेश्चन जो एनेके থাকে যদি আপনার एक नया क्वेश्चन ही मानिए इसको पहले इसको करने से पहले एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक छोटा सा चीज और, ओके। सपोज अपना क्वेश्चन दिया আছে, अपना क्वेश्चन दिया আছে A:B इक्वल टू 2:3, B:C इक्वल टू 3:4, अपना ওলাব দিলে A:B:C, ठीक है। A:B, B:C कॉमन कौन से आते हैं B, और कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से B आपका ऑलरेडी सेम किया हुआ है, या तो B अपना 3 या तो B अपना 3, इजंट इट। যদি অলরেডি সেম আছে আপনার একো কৰিব লগাই নাই, আপনি ডাইরেক্ট চাই পিনে आंसर লিখক, কেনেকে B ঠাইত আপনি লিখি দিয়ক 3, A ঠাইত কি হ'ব অটোমেটিক্যালি 2, C ঠাইত কি হ'ব অটোমেटिकली 4, दिस इज योर आंसर, खत्म। कब? जब B ऑलरेडी जो कॉमन है ऑलरेडी सेम किया हुआ है, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सपोज A:B इक्वल टू 1:2, B:C इक्वल टू 2:3, C:D इक्वल टू 3:4, D:E इक्वल टू 4:5, क्लियर। अपना ওলাব দিলে A:E, आंसर 1 and 5, बिकॉज এই দুটাৰ ভিতৰত B কমন আৰু B অলৰেডি সেম, এই দুটাৰ মাজত C কমন, C অলৰেডি সেম, এই দুটাৰ মাজত D কমন, D অলৰেডি সেম, সো A:E 1:5, खत्म। আপনাক ওলাব দিয়ে না, আপনি না A:B:C:D:E ওলাই দিয়ক, ইজি। 1 2 3 4 5, 1:2:3:4:5, आंसर क्लियर। अपना ওলাব দিলে C:E, आंसर C इधर से देखेंगे 3 और 5, खत्म। ये सब मुमकिन होगा, एक लाइन में आ जाएगा जब आपका वैल्यू सेम किया हुआ है। वैल्यू सेम नहीं है, आपको 1-2 स्टेप करना पड़ेगा, क्लियर। तो इसमें आपका ये वैल्यूज ऑलरेडी सेम किया हुआ है, ओके, ठीक है। ইয়াতে আহক A:B, B:C, ইয়াতে আপনার B কমন B, বাট B বেলেগ বেলেগ কে দিয়া আছে 3 আৰু 4 सेपरेट, सो अलग अलग है, आपको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। सो 3 আৰু 4 লসাগু কিমান? 12। সো ইয়াতে আপনি B আপনি 12 বনাবো, ইয়াতে B ঠাইত আপনি 12 বনাবো লাগে। 3 আছে বনাবো লাগে 12, কি পূরণ দিব? 4। সো ইয়াতে যদি 4 আহে ইয়াতেও 4 আহিব, 4 2 8। অলরেডি 4 আছে 12 বনাবো লাগে, ইয়াতে 4 আছে 12 বনাবো লাগে, ইনটু 3 into 3, so A:B:C, 8:12:3, this is your answer, because already अपना B याते समान हो गल, से 12 हो गल, so 8 ठाইত अपनी 8 বহাই দিয়ক, C ঠাইত अपनी 3 বহাই দিয়ক, क्लियर, okay। it will method 1, this is method 1। এটা আপনি মেথড 2 এটা চাব, মেথড 2 এটা চাব। A:B 2:3, B
इज टू सी आपको सिर्फ लिखने के दौरान লেখাৰ সময়ত আপোনাক ইমানখিনি মনত ৰাখিব যে যেটো কমন নম্বৰ কমন ইয়াতে কি আছে বি নহয় সো বিৰ তলত যাতে বিৰ ভ্যালু আহে বিৰ তলত যাতে বিৰ ভ্যালু আহে ইয়াতে বিৰ ভ্যালু কি হ'ব 4:1 তো বি মানে কি 4 তো আপনি এই যে 3 আছে নহয় বিৰ ভ্যালু ইয়াতে বিৰ তলত আপনি 4 লিখি দিয়ক 1:1 तो सजा कैसे लिखना है जो कॉमन है उसके नीचे उसका वैल्यू लिख दीजिए अभी शॉर्टकट ये है अपना लिखिबो लगे a is to b is to c first this into this is the first step number 1 this into this 4 2s are 8 step 2 this into this step 2 4 3s are 12 this into this step 3 3 1 is ठीक है जिगजैग तरीके से ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे दिस मेथड 2 एटा लाइन होता है आंसर पाबो अपने हो गल ये हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज इसका यूज बहुत लिमिटेड है अपना क्या है दुटा रेशियो दिया আছে होबो पारे अपना पांचटा रेशियो दिया होबो पारे देन आप ये वाला शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे उसके लिए दूसरा शॉर्टकट सीखेंगे अभी जो यूनिवर्सल है कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ये है बहुत ही ट्रेडिशनल इससे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्कूल में ऐसे ही सिखाया जाता है अभी तीसरा वाला मेथड सीखेंगे 2:3 4:1 2:3 4:1 2:3 4:1 this is a is to b this is b is to c और अपना बोलाबो दिले a is to b is to c okay so a is to b 2:3 इसको थोड़ा गौर से सीखेंगे ये आपको आगे चल के ये हम लोग यूज करेंगे b is to c 4:1 লেখাৰ সময়ত b কমন तो b তলত b নম্বৰটো আহিব 4:1 ইয়াতে 4 ইয়াতে 1 ये याद रह जाएगा याते कोई दिक्कत नहीं आपको आंसर चाहिए a is to b is to c याते लिखो এতিয়া লিখাটো হৈ গল নেক্সট স্টেপ আপনার জিকেটা রেশিও কোশ্চেনত অলরেডি দিয়া আছে 2:3 কোশ্চেনত দিয়া আছে 4:1 কোশ্চেনত দিয়া আছে যি অনুপাত অলরেডি আপনার কোশ্চেনত দিয়া আছে এই অনুপাতত আপনি বক্স কৰি দিও কেনেকে বক্স কৰি ভিতৰত সোমাই দিও যাতে लास्ट में भी কোনো कंफ्यूजन जाते ना থাকে क्वेश्चनत की আছিল मैं की बनालू सो ये रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था आप उसको सिर्फ बॉक्स कर दीजिए हो गया अभी ऊपर में अगर रेशियो है नीचे में आपको खाली जगह दिख रहा है तो रेशियो पुट करना पड़ेगा नीचे में अगर रेशियो है ऊपर में खाली जगह दिख रहा है तो रेशियो पुट करना पड़ेगा जैसे इधर एक रेशियो है इसके नीचे कोई रेशियो नहीं लेकिन जगह खाली है रेशियो पुट कर दीजिए याते একটা অনুপাত চিহ্ন আছে বাট উপরত নাই ইয়াতে পুট করে দিও हो गल उसके बाद ये दो पार्टी है दोनों पार्टी में किसके साइड खाली जगह है 2 और 3 किसके साइड खाली जगह है 3 साइड या 3 4:1 कार साइड खाली जगह है 4 या 4 क्लियर अभी ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 4 3 जा 12 3 1 is 3 आंसर दिस इज योर आंसर ठीक है याद रहेगा फिर से एक बार बोल रहा हूं जी रेशियो केटा क्वेश्चन दिया আছে लिखेंगे जो कॉमन है कॉमन के नीचे कॉमन नंबर लिखेंगे बी है तो बी के नीचे बी का नंबर लिखेंगे उसके बाद जो जो दिया हुआ है उसको बॉक्स कर दीजिए बॉक्स कर देंगे उसके बाद हर एक रेशियो के ऊपर में रेशियो आएगा हर एक रेशियो के नीचे में रेशियो आएगा पूरा इसको खत्म करना है पहले खत्म करने के बाद दो नंबर में से जिसके साइड खाली है वो नंबर लिखना है जिसके साइड खाली है वो नंबर लिखना है उसके बाद वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है खत्म क्लियर याते আপনার मोटामोटी आरो একটা বেলেগ টাইপ হয়ে গল তো এই क्वेश्चन আমরা অলরেডি হয়ে গল না ये वाला आंसर हम लोग ऑलरेडी उधर कर चुके हैं क्लियर ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सब की दिया আছে a is to b equal to 2:3 a is to b equal to 2:3 b is to c b is to c equal to
বিৰ তলত বিৰ ভ্যালু আহিব তো b/c 4:1 4:1 c/d 5:3 c/d চিৰ তলত চিৰ ভ্যালু যদি আহে সো ইয়াতে আহিব আপোনাৰ 5:3 ওলাব দিলে আপোনাক a:b:c:d ठीक है यहाँ तक नेक्स्ट स्टेप क्या था नेक्स्ट स्टेप क्या है बॉक्स जिकेटा दिया আছে গুটেকেটা আপুনি बॉक्सर ভিতৰত সোমাই দিয়ক नेक्स्ट स्टेप हर एक रेशियो के नीचे भी रेशियो रहेगा ऊपर भी रेशियो रहेगा इससे शुरू करते हैं ये वाला रेशियो ऊपर में खाली जगह है रेशियो तলত खाली जगह আছে रेशियो ऊपरत আছে তলত নাই रेशियो তলত নাই रेशियो रेशियो ऊपरत खाली जगह আছে रेशियो ऊपरत खाली जगह আছে रेशियो क्लियर এতিয়া 2 और 3 कार से खाली আছে 3 3 3 4:1 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 यहाँ पे 5 नेक्स्ट स्टेप वर्टिकली मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 8 5 जा 40 4 3 जा 12 12 5 जा 60 3 1 is 3 3 5 जा 15 3 3 जा 9 this is your answer 40:60:15:9 question number 8 clear ठीक है मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 की दिया আছে a:b 1:2 so a:b equal to 1:2 b:c b:c 3:4 b তলত b ভ্যালু 3:4 c/d c/d c তলত c ভ্যালু 5:6 5:6 d/e d/e d তলত d ভ্যালু মানে 2:3 a:b c/d e ক্লিয়ার তো কি করব আপনি বক্স কেটা বনাই দিয়ক রেশিও এতিয়া ইয়াতে রেশিও আছে উপৰত খালি আছে খালি আছে খালি আছে রেশিও আছে উপৰত খালি জায়গা খালি খালি রেশিও আছে क्लियर 1 और 2 टू साइड खाली जगह আছে 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 2 2 2 हो गया मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 10 3 जा 30 5 2 जा 10 10 3 जा 30 32 जा 60 5 2 जा 10 10 4 जा 40 42 जा 80 6 2 जा 12 12 4 जा 48 48 into 2 96 6 3 जा 18 18 into 4 72 72 का डबल 144 किंतु किंतु अपना याते आंसर तो ওলাই গল বাট রেশিও অনুপাত সদায় সিম্পলেস্ট ফর্মত আহে মানে আপোনাক কিবা এটা কোশ্চেন ওলোৱাৰ পিছত आंसर আহিল 6:12:18 আপনি এনেকে आंसर থব নোৱাৰে যদি কিবা কটাকটি যায় মানে কমন কোন নম্বৰ যদি গোটেই কিটা নম্বৰ যদি ক্যান্সেল আউট হয় কটাকটি যায় নিশ্চয়কৈ কৰিব 6 1 is 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 आंसर शुड बी 1:2:3 एटू ना है क्लियर ये लिखने से गलत होगा तो जब आप ये पूरा निकाल लिए तब देख रहे सब नंबर तो जा रहा है किसी ना किसी नंबर से 2 से तो जा ही रहा है श्योर बात तो 2 से अगर जाएगा तो 30 যদি আপনি 2 দিয়ে যদি কাটে কি মান পাবো ইয়াতে যদি আপনি কাটে ইয়াতে পাবো 15 this will be 15 this will be 30 this will be 40 then comes 48 then comes 72 আপনি 2 দিয়ে কাটি দিয়ক পাবো আৰু যায় নেকি আৰু না যায় this is the answer ठीक है this is your answer this is your final answer
15:30:40:48:72 इज द करेक्ट आंसर। एक ही नंबर से जाना पड़ेगा, एक ही नंबर से जाना पड़ेगा और सबको काटना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं 15, 30, 48, 72 3 से जाता है, लेकिन 40 नहीं जा रहा तो मैं 3 से नहीं काट पाऊंगा। जाना होगा तो सबको जाना पड़ेगा एक ही नंबर से, काटने के बाद जो रह जाएगा वही आपका आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन বাট ভেরি ভেরি কনসেপচুয়াল। सब मैं आगते এখন नको आके जस्ट सॉल्व करो, हाँ तो आपको लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 5 मैं लिखिब पारो ना 5/1 एक असुविधा নাই। এটা আমাক ওলাব দিলে 3a প্লাস 4c বাই 3b প্লাস 4d। ক্লিয়ার? আপনি কি কৰিব, এই ইজি a বাই b c বাই d মানে 5/1, a মানে 5, c মানে 5, b মানে 1, d মানে 1। সো এর ঠাইত আপনি বহাই দিয়ক 3 × 5, 4 c ঠাইত বহাই দিয়ক 4 × 5, a ঠাইত 5 বহাই দিয়ক, c ঠাইত 5 বহাই দিয়ক, b ঠাইত আপনি বহাব 3 × 1 প্লাস 4 × 1, 3 5 যা 15, 4 5 যা 20, 3 प्लस 7 35 by 7 और 7 कैसे हो गया रे बाबा, दिस इज 4, दिस विल बी 7, आंसर इज 35, सॉरी आंसर इज 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों असुविधा आसने गया थे बा कुछ भी सब ये कैसे कर दिए, ये क्यों नहीं हुआ, कुछ लॉजिक या कुछ कंसेप्ट, हाँ सब ठीक है एकदम चंगा, ठीक ना, ठीक हो गया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेते हैं आपको दिया है a बाई बी इक्वल टू c बाई डी इक्वल टू सपोज 2/3, सपोज 2/3, एटू कोन डाঙৰ কথা না, এটু জি ইচ্ছা হ'ব পাৰে। আপোনাক ওলাব দিলে इसको ऐसे नहीं, और सिंपल करते हैं, ज्यादा और सिंपल करते हैं, रुकिए इसको ऐसे लिखते हैं। अपना दिया से x/y इक्वल टू 2:3, फाइंड रोमान 1 3x प्लस 2y बाय 3x माइनस 2y, रोमान 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x माइनस y। এই দুটা কোশ্চেন আপনাক দিলে, যদি আপনাক x/y ইকুয়াল টু y/3 দিয়া থাকে, যদি আপনাক x/y इक्वल टू 2:3 दिया থাকে, আপনাক এই দুটা वैल्यू उलाबो दिले, है ना, देखने में बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि रोमान 1 x/y इक्वल टू 2:3 আপনাক কি उलाबो दिले, আপনাক उलाबो दिले 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y, हाँ 3 इंटू x की बहाम 2, x 2 एंड y थाइट अपने की बहाबो 3, सो 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सॉरी प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x माने 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 की हो गल। ठीक है, इसको मैं पहले इसको रखते, इसका आंसर क्या होगा अभी, 6 माइनस 6, ऊपर वाला 12 मतलब बेसिकली 12 बाई 1 ना 6 माइनस 6 0, हाँ 0, आंसर 12 में आएगा ना, आंसर होगा अनडिफाइंड। কোনো নম্বরক 0 দিয়ে ডিভাইড করাই না যায়, डिवाइड करा माने कि डिस्ट्रीब्यूट करा। मैं अपना बोलो जो कल सब आइएगा, आप लोग को चॉकलेट देंगे सबको, तो हाँ सर चॉकलेट खिलाएंगे, आप लोग नहीं, बच्चे को जो होता है 7-8 का बच्चे को, तो ऐसे देंगे, तो हाँ सर चॉकलेट दीजिए, तो मैंने हाथ में रखा, हाथ हटा दे, कहाँ है चॉकलेट, नहीं है, 0 चॉकलेट दिए है। तो वैसे तो मैं एक चॉकलेट को पूरा कोकराझर को खिला सकता हूँ, सबको 0-0 दूंगा, इनफाइनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसलिए जब आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे वो अनडिफाइंड, वो संभव ही नहीं है, तो अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो ये तो एक लॉजिक हो गया कि 0 से कभी डिवाइड होता नहीं। मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि मान लेता हूँ 0 ट्रिपल झमेला बात दियो, अपने ये आते सपोज कि बाटा করে দিও कर, ये तो
सपोज मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, यही चीज है, आपको निकालने दे रहा हूं 3x प्लस 2y बाई x প্লাস y। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ঠিক আছে? আপনাক এটু দিয়া আছে, আপনাক এটু উলাব দিলে, এটু দিয়া আছে, এটু উলাব দিলে আপনি সেম কৰিব আকো নহয়, 3 into 2 plus 2 into 3 by 2 plus 3, so 6 plus 6 by 5, answer will be 12 by 5। কিবা ডাউট আছে নেকি ইয়াতে? एनी डाउट? ठीक है ना, सिर्फ वैल्यू बैठा दी x और y की जगह, ये 100% करेक्ट है, पूरा 2 में 2 मार्क मिलेगा। दिक्कत क्या है देखिए, दिक्कत है अभी मैं आपको बोल रहा हूं ये वाला निकालिए, दिस वन, मैं अपना ए2 वाला बोल दिलो रोमान 2, ठीक है? वही क्वेश्चन है, x is to y equal to 2 is to 3, ये निकालने दिया है अपना, दिया से x is to y equal to 2 is to 3 और अपना क्यों वाला बोल दिसिलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x माइनस y इक्वल टू व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? अपने की कोई वो सर क्या बात है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, x बाई वाई इक्वल टू 2 बाई 3 माने x इक्वल टू 2 माने y इक्वल टू 3, अपना उलाबो दिले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x माइनस y, x होता है बहाय दिलो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 4 प्लस 9 बाई माइनस 1, आंसर इज माइनस 13, है ना? रॉन्ग, ये गलत है। अभी गलत का फंडा क्या है देखिए, क्यों ये गलत है और क्यों अभी तक क्यों सही हो रहा था, ये क्वेश्चन आते ही क्यों गलत क्यों हो गया और अभी तक क्यों सही हो रहा था देखेंगे। अपना এই কোশ্চেনত এবারও কিন্তু কোশ্চেনে अपना কোয়া নাই যে আপনি a এর জায়গা 5 log c, a इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5, आपको कोई नहीं बोला है, b इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1, आपको कोई नहीं बोला है, आपको सिर्फ बोला गया है a और b का रेशियो 5:1 है। a और b দুটা নম্বর, যে দুটা নম্বরের অনুপাত 5:1, এই দুটা নম্বর তো 50 আর 10 হবো পারে, रेशियो 5:1, 500 100 भी हो सकता है 5:1, 5000 1000 भी हो सकता है 5:1। 5 और 1 एग्जैक्टली तो नहीं बोला है, हम लोग अपने सुविधा के लिए ले लिया हूं, लेकिन सर मान लिए मैं ले लिया हूं, लेने के बाद ये आंसर तो करेक्ट हुआ, ये आंसर तो करेक्ट हुआ, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये क्यों गलत हो गया? स्क्वायर है इसलिए नहीं, इसलिए गलत है बिकॉज अपना যেটা এনেকে দিয়া থাকিব নহয়, এনেকে দিয়া থাকিব আৰু एक्चुअल নিয়ম কি? एक्चुअल নিয়ম হল a বাই b ইকুয়াল টু c বাই d इक्वल टू 5/1, এটো অনুপাত দিয়া আছে, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू की इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू कुछ तो होगा, इक्वल टू ये इसमें कुछ आपको रिजल्ट आएगा, इसमें कुछ आपको रिजल्ट आएगा, इसमें कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट इक्वल टू व्हाट? तो रिजल्ट इक्वल टू मैं बोल सकता हूं रिजल्ट इक्वल टू k, या रिजल्ट इक्वल टू मैं बोल सकता हूं रिजल्ट इक्वल टू 5, इधर जैसे 5 दिया है रिजल्ट इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या आपका हो गया? a इक्वल टू आपका हो गया 5b, 5 इंटू बी, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू डी, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। इसको ऐसे समझाता हूं, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इधर समझेंगे थोड़ा बेहतर तरीके से, इसको देखेंगे। अपना की दिया আছে x বাই y 2/3, এটু মানে আমি লিখিব পাও না নাই যে x এই যে 2 আছে নহয়, এটু মই ইয়াতে লৈ আহিলো, y ইয়াতে লৈ গলো by 3, क्या ये ऐसा मैं लिख सकता हूं? x by y equal to 2/3, 2 মই ইয়াতে লৈ আহিছো, y টু মই ইয়াতে লৈ গৈছো, क्रॉस মাল্টিপ্লিকেশন ইয়াতে লৈ আহিছো, অসুবিধা একো নাই। So this is equal to, suppose this is equal to this x by y কি হয়? y by 3 কি হয়? কিবা এটা তো হয়, কিবা একটা कांस्टेंट वैल्यू, this is equal to k बोली मैं ধরলো k, कुछ एक होगा जो इसका भी वैल्यू समान है, क्या है? k है, मतलब x इक्वल टू की हो गल अपना x इक्वल टू 2 into k 2k, y इक्वल टू 3 into k 3k। ক্লিয়ার? এটা আপনি চাবো আপনার কি দিয়া হইছিল x is to y, এই দুটা নম্বরের অনুপাত 2:3, x মানে 2, y মানে 3 কিন্তু কোয়া হওয়া নাই, দুটা নম্বরের অনুপাত 2:3। এতিয়া আপনি একটা পার্টিকুলার নম্বর আপনার নিজের ইচ্ছা যে কোনো নম্বর रैंडमली 100 1000 कुछ भी, आप सेम नंबर इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए और उसका रेशियो आपको 2:3 ही रहेगा। আপনার এটা দুটা নম্বরের অনুপাত 2:3 বুলি কোয়া হল। এতিয়া আপনার মাজত কোনোবা কৈছে मैं काम करता हूं, मैं 2 के साथ ना 2 लाख मल्टीप्लाई करूंगा, 3 के साथ भी 2 लाख मल्टीप्लाई करूंगा, रेशियो क्या रहेगा? 2 लाख तो कट जाएगा, 2:3 तो रहेगा।
आप बोलेंगे नहीं सर मैं ना इसके साथ ₹2.5 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5, 2.5 कैंसिल आउट, 2:3। सीधा सा बात यह है, अगर आपका रेशियो गिवन है, आप रेशियो के दो साइड में कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। तो सेम नंबर माने कि कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर में k मान लिया, x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 3k, অসুবিধা নাই। এতিয়া আপুনি চাব এই কোশ্চেনটো চাব, আপুনি কি কৰিব, x ৰ জায়গাত কি বহাব, 2k বহাব, ইয়াতে y ৰ জায়গাত কি বহাব, 3k বহাব। अभी थोड़ा देखेंगे इसमें क्या होगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा इधर एक, ইয়াতে একটা k এটা আহিব, আকৌ x প্লাস y, x মানে কি 2k, y মানে কি 3k, ইয়াতে একটা k আহিব, ইয়াতে একটা k আহিব, হয় না নাই? প্লাস কি দেंगे 6k মানে k k k k k, এতিয়া k আৰু k कैंसिल, दैट्स व्हाई आंसर इज 12/5। क्लियर? ये k वाला झमेला हम लोग रखे ही नहीं थे, डायरेक्ट बोले थे 12/5 करेक्ट हो गया था। दिक्कत क्या हो गया इधर सर, अभी तो आप k वाला बोले, थोड़ी देर पहले बोले थे x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 3k, इमाने हिसिल নহয় এতিয়া ইয়াতে হোক x इक्वल टू 2k होल स्क्वायर, 3k होल स्क्वायर, 2k 3k, 2k होल स्क्वायर माने 4k स्क्वायर, 3k होल स्क्वायर माने 9k स्क्वायर, 2k माइनस 3k माने माइनस k। এতিয়া কি হ'ব, ওপৰত কি আহিল আপোনাৰ 13k স্কয়ার, তলত কি আহিল আপোনাৰ মাইনাস k, এটা k গ'ল, ইয়াৰ পৰা এটা k গ'ল আৰু এটা k থাকি গ'ল ইয়াতে আপোনাৰ, মানে आंसर विल बी -13k। अब ये k का वैल्यू मुझे कौन देगा, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे निकालने का तरीका ही नहीं है मुझे k का वैल्यू। तो इसका आपका आंसर होगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा कौन सा सिचुएशन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कौन सा सिचुएशन में आंसर आएगा, दैट्स द क्वेश्चन। सिंपल लॉजिक इज, এটা বস্তু হয় ডিগ্রি, এটা বস্তু হয় ডিগ্রি, ডিগ্রি মানে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার, ভেরিয়েবলৰ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার। আপনি যদি ইয়াতে চাই, ইয়াতে ভেরিয়েবল হল x, x ৰ পাওয়ার কিমান, ইয়াতে x ৰ পাওয়ার কিমান 1, ইয়াতে পাওয়ার কিমান, ইয়াতে পাওয়ার কিমান, ইয়াতে পাওয়ার কিমান, এই ওপৰত যিমানখিনি বস্তু লিখা আছে নহয়, ইয়াৰ ডিগ্রি হল 1 বিকজ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার 1, তলত ম্যাক্সিমাম পাওয়ার 1 মানে ওপৰত ডিগ্রি আৰু তলত নম্বৰৰ ডিগ্রি সেম, ডিগ্রি সেম, k k k स्क्वायर k क्यूब डिग्री सेम, काटाकाटी जाएगी, काटना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिग्री, अभी मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं, इधर मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर, इधर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, इसको भी स्क्वायर कर देता हूं, इसको भी स्क्वायर कर देता हूं, इसको भी स्क्वायर कर देता हूं, फिर भी आपका ये लॉजिक लगेगा, 2 बैठा दीजिए, 3 बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्यों? डिग्री सेम, डिग्री सेम माने k वाला चीज ही नहीं रहेगा, कट ही जाएगा। लेकिन इसमें आपका डिग्री सेम नहीं है, यहाँ पे अपना ऊपर डिग्री 2, এই বস্তু ডিগ্রি 2, ইয়াতে ডিগ্রি 1, ডিগ্রি সেপারেট সেপারেट, डिग्री सेपरेट सेपरेट থাকিলে আপনি k এর ভ্যালু উলাবো নোৱাৰে। ठीक है? तो इस सिचुएशन में आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज से अगर आप कुछ साल पहले का देखेंगे, 2021, 20, 19 के उस टाइम कोरोना के अगल बगल देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको रेलवेज एसएससी में 2-3 साल भर भर के दिया है, भर भर के। और ज्यादातर लोग, क्योंकि इसका नॉर्मल क्या होता है, शॉर्टकट हम लोग क्या सिखाता है, ठीक है 2 बैठा दो, 3 बैठा दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, वो उससे पहले चेक करना पड़ेगा क्या ऊपर और नीचे डिग्री सेम है कि नहीं। डिग्री माने मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर सेम अगर है तो आपको ये सब झमेला करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्स के जगह ये वैल्यू बैठाइए, वाई के जगह ये वैल्यू बैठाइए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिग्री अलग अलग है तब भी कोई झमेला नहीं है, बिकॉज सब करके भी फायदा नहीं, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा। क्लियर? इसमें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। এটা কথা মনত ৰাখিব, অনুপাত কেতিয়াও ভগ্নাংশত যদি অনুপাত ৰাখা হয় এটা এটা সৰু ধৰণৰ পাপ আৰু ভগৱান কিন্তু माफ নকৰে। ठीक है? सो आपका रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, हमेशा पूर्ण संख्या इंटीजर में लिखना पड़ेगा। ठीक है? सिमिलरली b/c 1/5:1/3 দুটাই অনুপাত দিয়া আছে, দুটাই অনুপাত দিয়া আছে, অনুপাতত রাখা এলাও নাই, সো हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? এই তলত থাকা নম্বৰ দুটা, এই দুটা নম্বৰে আপোনাক প্ৰবলেম দিলে, ওপৰত থাকা নম্বৰে কিটা প্ৰবলেম নিদিয়ে, তলত দুটা নম্বৰে প্ৰবলেম দিয়ে। এই দুটা নম্বৰ কিবা কৰি যদি মই
সাইড কৰিব পাৰো ঝামেলা হেক সো এই দুটা নম্বৰৰ আপুনি লসাগু ওলাই লওক एलसीएम 2 और 3 एलसीएम किमान 6 अब 6 से दो साइड में मल्टीप्लाई कर इधर भी 6 से मल्टीप्लाई इधर भी 6 से मल्टीप्लाई 5 और 3 लसागु 15 से मल्टीप्लाई खत्म 6 by 2 3 into 1 3 6 by 3 so A is to B माने 3 is to 2 15 by 5 3 15 by 3 5 हो गल A is to B B is to C কি ওলাব দিলে আপোনাক A plus B আপনাক ওলাব দিলে A plus B is to B plus C तो A plus B by B plus C ठीक है अभी बैठा देते सर कुछ A 3 बैठा देंगे बैठाने से पहले जरूर दिखिएगा क्या इसमें कॉमन कौन है कॉमन B क्या B दोनों में सेम हुआ है सेम ऐसे सेम नहीं तो सेम नहीं है तो आपके पास अभी तीन मेथड है किसी से भी आप कर सकते हैं A is to B is to C निकाल सकते हैं सो A is to B इक्वल टू 3 is to 2 B is to C इक्वल टू 3 is to 5 B तलत B 3 is to 5 कोई भी एक मेथड यूज कर लीजिए A is to B is to C 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 5 जा 10 A माने 9 B माने 6 C माने 10 A plus B A ঠাইত কি বহাম 9 B ঠাইত 6 by B ঠাইত আকৌ বহাই দিয়ক 6 plus C माने 10 so this will be 15 by 16 option B is the correct answer 15 is to 16 clear বাদ দিও এটা নেক্সট ক্লাসত করো ঠিক আছে আজ ইতনা ही थैंक यू सो मच